بے روزگاری من سرفہرست ایس پی این مستقل کرنس حوالہ گژھن قدم تلنہ ین ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی سن بیان جموں کشمیر بجٹ اجلاسک گۄڈنیُک مرحلہ اختتام جموں کشمیر جی ایس ٹی ترمیمی بل اسمبلی مز منظور عارضی ملازمن ہند مسئلہ حل کرنس حوالہ سرکار سنجید عمر عبداللہ سن بیان ذات یونٹ مفت بجلی ہندس وعدس پہ سرکار قائم آئندہ وقتس مز مفت بجلی ہند دائرہ مزید وسیع کرنا عمر عبداللہ سن بیان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی سند طرف لوک سبھا مز ون آمت دفعہ 307 منسوخ سپدن پتہ جموں کشمیر اندر بے روزگاری مز اضافہ وچھنا تو پتمین 5 ورین دوران جموں کشمیر بے روزگاری مز ملکس اندر سرفہرست روزمز تمو وون مرکزی سرکارس پہ جواب دن جموں کشمیر اندر بے روزگاری ختم کرنے حوالہ کم اقدام تلنہ یوان تمو مزید یہ پولیس خاطر مرکزی بجٹس مز اضافہ کرنے آو تاہم پز مرکزی سرکارس ایس پی او ہندس بارس مز تہ سوچن تو ایس پی او مستقل کرنس حوالہ گژھن سنجید قدم تلنہ ین یُتھ ایس پی او ہند بتین ول مشکل دور سپدن جموں کشمیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 370 ہٹانے کے بعد آج تک ان 5 سالوں میں پہلی بار ان ایمپلائمنٹ ریٹ ملک میں سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر میں ایسا پہلے کبھی نہیں تھا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جموں کشمیر یہ ہم نے پہلی بار دیکھا 370 ہٹانے کے بعد اس بجٹ میں ہم نے ٹارگیٹڈ ایمپلائمنٹ سکیمز جو ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہیں دیکھا اس کے برعکس اس کے حوالے سے بھی کوئی جواب نہیں آیا میں چاہتا ہوں کہ ایک جواب آئے یہ ان ایمپلائمنٹ کو جو ان 5 سالوں میں بڑھی ہے اس حد تک کہ ہم سب سے زیادہ ان ایمپلائڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کر کیا رہی ہے اس کے برعکس آپ دیکھیے پولیس کا جو بجٹ ہے اس میں ایلوکیشن تقریباً 1000 کروڑ روپے کے قریب بڑھا دی گئی ہے انڈسٹریز پہ نہیں ہیلتھ سیکٹر پہ نہیں ایجوکیشن پہ نہیں ہارٹیکلچر پہ نہیں ٹورزم پہ نہیں بلکہ پولیس پہ 1000 کروڑ روپے کا انکریمنٹ کیا گیا ہے اس بجٹ میں اب اگر کیا بھی ہے کم سے کم ایس پی او جو ہے وہاں پہ جو سالہ انتظار کرے کہ ان کی نوکری پکی ہو جائے گی کم سے کم یہ جو آپ نے انکریز کیا ہے بجٹ اس پہ ایک آپ ان کے لیے خیال رکھتے پروویژن رکھتے کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے لا اینڈ آرڈر گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے یہ ڈیسیجن یہ خود لے سکتے ہیں اگر اب پولیسنگ کے لیے پیسے بڑھائے ہی آپ نے کیا یہ کشمیریوں کو ڈنڈا مارنے کے لیے پیسے بڑھائے یا کچھ سہولیت دینے کے لیے اگر سہولیت دینے کے لیے تو پولیسنگ کے ذریعے جو ایس پی اوز ہے کم سے کم وہ انسینٹیو دیتے آپ وہ پروویژن رکھتے آپ ان کے لیے آپ ان کی جاب جو ہے پرماننٹ کرتے ایسا بھی کچھ نہیں ہے ٹورزم جو ہے جیسا کہ میں نے کہا 2019 سے پہلے بھی جب وہ سیلاب آیا تھا فلڈ آیا تھا تب سے لے کے ابھی تک کنٹینیوسلی ان حالات سے گزر رہا ہے بس جموں کشمیر اسمبلی مز آیا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف جی ایس ٹی ترمیمی بل 2025 پیش کرنے یتھ پہ سجاد غنی لون تو وحید الرحمان پرہ سند طرف اعتراض ظاہر کرنے آئی پیپلز کانفرنس پارٹی چیئرمین سجاد غنی لون سند طرف ون آمت یہ بل ایوانس مز پیش کرن 5 اگست 2019 فیصلہ قبول کرن تمو ون گۄڈنیُک موقع ایوانس مز آئی یم قسم بل پیش کرنے ات دوران سپیکر عبدالرحیم رٲتھر تو سجاد غنی لونس درمیان تلق کلامی تہ سپز تتہ آو سجاد غنی لون سند طرف اسمبلی مز احتجاج واک آؤٹ کرنا تمو ون تم ہیکن ات گناہس من شامل سپدت یل زن سپیکر سند طرف ون آو جی ایس ٹی قانون آو 2017 مز ان ات قانونس مز ترمیم کرن ضروری پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ سند طرف تہ آو مسودہ قانونس مز یو ٹی لیکھنس پہ اعتراض ظاہر کرنے یم پتہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ون یہ حقیقت جموں کشمیر فی الحال یو ٹی تمو سوال کھڑا کران ون یم وز مطالبات زر پیش کرنا آئی تم وز کیاز آو یہ سوال کھڑا کرنا عمر عبداللہ ون حالات بدلن دل پہ یل پارلیمنٹ جموں کشمیر ہند ریاستی درجہ بحال کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند تقریر پتہ جموں کشمیر گوڈس اینڈ سروس ٹیکس ترمیمی بل 2025 ایوانس مز منظور کرنا آمز Services Tax Act 2017, LA Bill number 1 of 2025 be taken into consideration. تحریک کی گئی ہے جموں کشمیر گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس ایکٹ 2017 میں ترمیم کرنے کی غرض سے مسودہ قانون LA بل نمبر 1 بابت 2025 کو زیر غور لایا جائے
तहरीक ऐवान के सामने है। Ratification है यूटी का. We are ratifying UT through this assembly. In this bill, we are ratifying that this is a UT. This is the first time that this assembly. No, you are not. Sir, You are not ratifying. But I will tell you. I will tell you what is it is. I will let you know. I will let you know what is. You are raising the objection. No, that is not the case. That is not. Whether a UT or not. आप सुनो ना, मेरी बात भी सुनो. आपने It is not ratification. Let me speak. आप तशरीह करने में सुनी बात. It is not ratification. Let me speak. बोलते रहिए. होता रहे 370. हमसे पूछा नहीं. अब ये किस बात पर हमसे पूछ रहे हैं? सुनिए, मैं क्या कहता हूं. सुनिए, रखिए तशरीफ पर. सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी. आपकी बात सुन ली. दरअसल चले नहीं है आप तो ठीक है. एक्चुअली हमने रेजोल्यूशन लाया 370 पे, आप लोगों ने अरे लाया इस वक्त स्टेटहुड पे 370 लाया. का है. आज हम लिख रहे हैं सर, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी द यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वो तो है नहीं, वो तो है बिकॉज वी आर नहीं. रेटिफाइंग वट एवर इज बीन हैपनिंग. No, you are wrong. देखिए ना, स्पीकर साहब, आप देखिए ना, ये जो सुनिए मेरे बात. स्पीकर साहब, वो बात नहीं है. स्पीकर साहब, Yes, sir. यही हमारी बदकिस्मती हो जाती है जब हम सारा कोर्स यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप के बुनियाद पे करते हैं. ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो मेरे ऑनरेबल साथी को मिला है, जिसके बुनियाद पे सजाद लोन साहब ने भी थोड़ा सा वॉकआउट किया, ये व्हाट्सएप हम सबको मिला है. इस व्हाट्सएप के तहत ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि कहीं अगर ये बिल पास हुआ तो जम्मू कश्मीर यूटी बनेगा. हम यूटी हैं. दिस इज वेदर वी लाइक इट और नॉट. दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अभी आप हमने जो ग्रांट्स ये बिल पास किया हमने फाइनेंस वाला, उसमें मैंने बार बार जब कंसोलिडेटेड फंड की बात की, मैंने क्या कहा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मैंने उस वक्त भी यूनियन टेरिटरी के हवाले से बात की. तब सजाद लोन साहब ने वॉकआउट नहीं किया. तब भी तो हमने यूटी की बात की. तो अगर उस वक्त एक सेकंड आप पहला क्या हमने अभी यूटी के हवाले से हमने ओथ लिए. हमने यूटी के असेंबली का इलेक्शन लड़ा. हम यहाँ यूटी का जो है हम बजट पास कर रहे हैं. अब हम क्या बिल से हम अगर यही निकालें, हम ये कहें अमेंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उससे क्या बदलेगा ना? हमने अभी अप्रोप्रिएशन बिल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास किया, जिसमें आप शामिल हैं. पास हुआ ना यूनियन टेरिटरी के लिए. मैं अगर ये निकाल देता तो क्या हमारी हैसियत बदल जाती? क्या हमारा स्टेटस बदल जाता? नाज़रीन, खबरनाम जारी. यतने वक्त जारी थी वक्फ.
वक्फ पच खबर नामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी सदर सत शर्मा सद तरफ आवाज गांधरबल कंगन दौर करने अथ दौरान तमो तत मरहूम फकीर मोहम्मद खान सदन गरकन सजियत तो इजहार यकजहती हूँ इजहार कोर मीडिया नुमाइंदन सत कत करान तमो अत मौके पे वोनमुत मरहूम फकीर मोहम्मद खान बीजेपी पार्टी सीनियर लीडर तो तिहुंद फोत सपदन पार्टी खतर वारिया बोड़ नुकसान अत मौके पे पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर तो दम जिम्मेदार तिमन सत मौजूद यह कत मामलायक जी कह दह ब्रोह आय फकीर मोहम्मद खान सज लाश तुलसी बाग श्रीनगरस मज तिहंदिस त्रेश गाहस पे मशकूक हालतस मज लबना ताम अम हवाल पुलिस तहकीकात जारी। माननीय संगठन महामंत्री अशोक कोल जी के साथ आज स्पेशल तौर पर मैं उनके परिवार के साथ मिलने के लिए संतावना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता चिंतित हैं। आज कंगन में यहाँ पर उनके परिवार के साथ मिलना हुआ है, उनके भाई के साथ, उनके बेटे के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ। पूरा भाजपा परिवार जो है वो चिंतित है। मुझे ध्यान है कि जब ये वाक़या हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने मुझे फोन करके कहा कि उनके परिवार के साथ बात करूं। हालांकि मेरी बात उनके बेटे के साथ हो चुकी थी, उनके परिवार के साथ हो चुकी थी, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी उनका नंबर दो, मैं बात करना चाहता हूं। आप सोचिए कि फ़कीर मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्व रखते थे, हमारे परिवार के लिए कितना महत्व रखते थे। उनके परिवार को तो क्षति पहुंची है, हमारे कश्मीर के भाजपा परिवार को तो क्षति पहुंची है, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को जो है एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। शुमाल कशीर जलाल साहब ओल्ड टाउन बारामुलास मज रात नारगस अकिस वारदात मज 15 रिहायशी मकान खाकस्तर सपदमत यल जन 7 रिहायशी मकान जजवी नुकसान वोतमुत तो रिहायशी मकान अंदर करोड़ बुद सामान तह मुकम्मल पे खाकस्तर सपदमुत। अम हवाले आवाज जिला तरक्की कमिश्नर बारामुला मेगा शर्पा सद तरफ जाय मौकु दौर करने अथ दौरान तमो तत सूरत हालुक जायज़ हेद। तमो अत मौके पे मुतसरीन खानदान यकीन दहानी कर्म तिहज बाज़ाबात करी हवालियन संजीद कदम तुलने युथ तिमन राहत वातान यी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर एडवोकेट नीलूफर मसूद सद तरफ त आवाज जाय मौकु दौर करने अथ दौरान तमो तत मुतसरीन सद यकजहती हुंद इजहार कोर। हद खोत ज्यादा नल जुट बे द्रावे ना कि वन लाग कि सह द्राव रिश्तेदार आय खो सहर तम सात रोज इफ्तार त्रेश बस तम मजीद कर फयाज अहमद नजार सबस तमिस कोरुक लूट तमिस अमाउंट कैश बेम सोबन 15.5 लाख रुपये या 5.5 लाख रुपये बे तमिस कॉल तनखा तोरमुत तमिस तनखा तकिस महरने सोरी जवाब ट्राक दमुत अम कोड देखिए, कल शाम से जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, कल शाम से 6 बजे से ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर थी, पुलिस थी, आर्मी थी, खुसूसन जो ओल्ड टाउन के नौजवान हैं। अगर इन्होंने वक्त पर स्टेप नहीं उठाया होता, हिम्मत नहीं दिखाई होती, मुझे नहीं लगता है ये होलनाक आग जो थी ये ख़त्म हो जाती। कल जैसा आपको पता है फायर इंसिडेंट में 14 घर फुली डैमेज हो गए थे, 7 घर पार्शली डैमेज हो गए थे। तो इमीडिएट रिहेबिलिटेशन के लिए जो घर फुली डैमेज हो गए उनको 50,000 रुपीज़ रेड क्रॉस से, और जो पार्शली डैमेज उनको 10,000 रुपीज़ रेड क्रॉस से। उसके अलावा ऑलरेडी जो हमारी डैमेज असेसमेंट टीम होती है जिसमें तहसीलदार साहब, एक्जन साहब है, वो ऑलरेडी स्पॉट में है। सो दैट जो उनको लार्जर रिलीफ जो SDRF में होता है 1,30,000 वो सैंक्शन हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले 1-2 दिन में जो भी इनको सहायता चाहिए, टेंट्स चाहिए, इनको कुकिंग इक्विपमेंट चाहिए, बाकी चाहिए, वो हम देख लेंगे। इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे DIG साहब भी हैं, SSP साहब भी, आज हम लोगों ने यहाँ जॉइंट विजिट किया है। नाज़रीन खबर नाम जारी ये ब्याह तजारती वक्फ।
वक्फ पत खबर नामस मज तुन दोबारा खैर मकदम रहबर तालीम टीचर्स फोरम जिला कुपवारा तरफ हंदवारिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वन आमुत जे ट्रेजरी ऑफिसर हंदवारा तो ट्रेजरी ऑफिसर लंगेट वस्तादन टी ए रकम अदा करनस मज नाकाम सपदमित यम किन तिम तशवीशस मज हेन आमद तिमो वोन जे बाकी हलकन मज तमाम वस्तादन टी ए जारी करना आव ताहम हंदवारा तो लंगेट ट्रेजरी ऑफिसर सिर्फ मखसूस वस्तादन फ़ायदे वातनानुच कोशिश करान यम किन कईहान वस्तादन हुन टी ए वन जेर इल्तवा तमो अवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन युथ वस्तादन हंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदैन। मीडिया फेडरेटी हंदवारा का मैं बहुत ही मशहूर हूँ। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जिले कुपवारा की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे एक मुद्दा है। जनवरी और फरवरी के महीने में हमारे जिले में भी पूरे मुल्क के साथ साथ एक मिशन चलाया गया जिसका नाम युवा मिशन दिया गया और जिस युवा मिशन की पूरी पजीराई, जिसकी पूरी गाइडेंस, जिसकी पूरी रहबरी और रहनुमाई हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली हमारी वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहिबा मैडम आयुषी सदन जी ने की है। उसने हमारे साथ कुछ मीटिंग्स भी लिए। उसमें सबसे ज्यादातर असाजा बरादरी को इस काम के लिए मुंसलिक किया गया क्योंकि टीचर जो है विंटर्स में उनकी ड्यूटी नहीं होती है और एज ए सैलरी पार्ट जिसे हम टीए कहते हैं वो उन टीचर्स को नहीं मिलती है। लेकिन जो टीचर्स विंटर्स में कोई असाइनमेंट एक्स्ट्रा करता है तो उसको डेफिनेटली ये ड्यू बनता है। तो क्लियर कट डायरेक्शंस के बावजूद भी मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी में जो टीए मिलना था हमारे असाजा बरादरी को पूरे जिले कुपवारा में, उसमें कुछ जोन्स ऐसे हैं, कुछ ट्रेजरी अफसर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल दोनों महीनों के ट्रेजरी जो टीए है वो रिलीज किया है। लेकिन कुछ ट्रेजरी अफसर्स जो बिल्कुल हरदर्म है इसमें, वो अपने आप को मैं ये कहूंगा कि किस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं, किस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है जो कुपवारा के बाकी ट्रेजरी अफसर से नहीं पढ़ा है। स्पेशली अगर हम ट्रेजरी अफसर लंगेट की बात करें या ट्रेजरी अफसर हंदवारा की बात करें, क्योंकि जिले कुपवारा में 13 तालीमी जोन है, हंदवारा में 4 जोन है और इसी तरीके से लंगेट ट्रेजरी अफसर में मावर लंगेट आता है। अब दुर्रा यह है कि लंगेट का जो ट्रेजरी अफसर है उसकी इतनी मनमानियां हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद वहां पर बिल ज़ेडओ ऑफिस से बनाई गई, वहां ये कहता है कि जो मैं कहूंगा, जो मैं कहता हूं वही सही है। और उस लेकिन अफसोस ये से कहना पड़ता है उसी लंगेट के कुछ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज में जो असातिज़ा या जो मुलाजिम काम करते हैं उसी युवा के लिए, उनके लिए तो उन्होंने एक रूल अप्लाई किया। वो रूल ए क्या है दैट वी डोंट नो। हम उस रूल ए को जानना चाहते हैं, उसने कहां से खींचा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तो ICDS तरफ आवाज मुश्तरका तौर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दमाल हांजीपोरा मज एक बेदारी प्रोग्राम सज कर ये खवातीन हंद रोल तो तिमन दरपेश मसलन हवाल कत बात करना आई। तकरीब ADC कुलगाम वकार अहमद मेहमान खुसूस तौर मौजूद। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे खवातीन हंद माशरस मज अहम किरदार। तकरीब मज प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज दमाल हांजीपोरा SDM नूराबाद आंगनवाड़ी वर्कर तो हेल्परन हंज खास तादाद मौजूद। जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे ICDS डिपार्टमेंट ने और डिग्री कॉलेज TH4 ने बाहमी इश्तराक से एक प्रोग्राम किया था, इसको एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर, कि जो हमारी गांव में रहने वाली खवातीन हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं और उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में आज यहाँ पे एक बड़ा काफ़ी शानदार प्रोग्राम DH4 में किया गया। तो मकसद यही था कि हम जो है गांव में रहने वाली खवातीन को उनको अवेयरनेस दे दें इस बारे में कि उनके लिए जो अलग अलग स्कीमें सरकार ने यहाँ पे रखी। देखिए खुर्शीद साहब, मैं आपको बताऊं कि आजकल हम आए दिन देखते हैं कि जो हमारी गांव की खवातीन हैं, गांव की खवातीन हैं, वो आए दिन बड़े बड़े मसाइल उनके शिकार हो रही हैं। अगर हम देखें कि हमारी जो गांव की खवातीनें हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन एक्सपोजर का काफ़ी कमी है, तो मुख्तलिफ जराइम की शिकार हो जाती हैं, घरेलू तशद्दुद की शिकार हो जाती हैं। तो हमने मुनासिब ये समझा कि इस दौर में हम यहाँ DH4 कॉलेज में एक ऐसा एडवोकेट अब्दुल रशीद मलिक हंदवारा बार एसोसिएशन बिला मुकाबला नई सदर मुंतखब करना आमद। तमो अत मौके पे वकलान हंद शुक्रिया अदा करान वोनमुत जे सह कर ईमानदारी सान यह जिम्मेदारी पूरी करने कोशिश तो बे कर वकलान हंद मुश्किलात दूर करने कोशिश। पहले हम शुक्र करते हैं उस अल्लाह का जिसने हमें पैदा किया है
बेसिकली जो प्रीवियस जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसका जो टेन्योर था वो ड्यू था 28 फरवरी 2025 को, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन नया कॉन्स्टिट्यूट किया तो उन्होंने फिर एप्लीकेशंस इनवाइट की है कि जो नया बॉडी बनने जा रही है, तो उसके लिए जो पोल डेट फिक्स था वो था 5 अप्रैल, तो 20 को था लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म्स। तो नॉमिनेशन फॉर्म्स में हम 5 ने फॉर्म यहाँ सबमिट किए, तो जो एतमाद आज जो जहाँ ये बार एसोसिएशन ने दिखा दिया हम पे कि किसी ने फॉर्म यहाँ हमारे खिलाफ फॉर्म नहीं भरा, तो जो एतमाद उन्होंने हम पे दिखा दिया, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस एतमाद पे पूरा उतरने की। मसले हैं इनके, मसाइल हैं, हम इन CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन नायक सिंह तरफ आवा सेहत मकाम गुलमर्ग दौर करने या दौरान तिमो टंगमर्ग मार्केट्स मज कोट बूट दुकान हूँ जायज हेत। अत मौके पे SDM गुलमर्ग, तहसीलदार टंगमर्ग तो दोम जिम्मेदार तिमन सत मौजूद तक तिमो दुकानदारन पे जोर दित तिम गसन सग्यावन हूँ खास ख्याल थवन तो तिमन राहत वातान कोशिश करें। देखिए डॉक्टर साहब, पहले भी यही कहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। जो आज चेकिंग हुई है CO के नजरसानी में, उसके साथ SHO भी थे, SDM साहब भी थे, AD टूरिज़म भी थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रूटीन चेकिंग हो रही है ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे इनको एक रेट लिस्ट जो है वही हम करना चाहिए था लोगों की दुकानों में। हर देखें, आप जानते हैं कि टूरिस्ट फ्लो हमारे गुलमर्ग में दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है। चेकिंग करने का जहाँ तक सवाल है, आप जानते हैं कि चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी इंटरेक्शन होती है, टूरिस्ट से भी इंटरेक्शन होती है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, स्टेक होल्डर है, उनके नाज़रीन कोशिश खबर नामो जतन से खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमानिल्लाह।